Hi students. Hi students. To the last class we have in the last lecture we have discussed about the phylum Arthropoda, its general characteristic features, and also we have discussed the basis of classification, and we have classified the Arthropoda in 7 different classes. So we have discussed a bit about that as well. So in this lecture, in today's lecture, we're going to discuss about the classes, all these 7 classes, along with some examples in detail, right? Those are the most important examples. See, there are many examples are there. We have already studied in the last video lecture that the number of species what we have discovered till now in Arthropoda, as we all know, the Arthropoda is the largest phylum in the entire animal kingdom. So there are many examples are there, but there is no need to study about those examples. तो अभी तक हमने डिस्कस किया था आर्थ्रोपोडा के बारे में, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, और हमने क्या पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन करने का क्या बेसिस है आर्थ्रोपोडा का, और उसमें कितने क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हैं, हमने डिस्कस किया है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि ये जो 7 क्लासेस हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट, हर एक क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू डिस्कस, आई नीड टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स रिगार्डिंग द लास्ट वीडियो लेक्चर, दैट वाज काइटिन. Now as we have already discussed about the chitin, see chitin is actually it is helping, or it is the basic constituent for the exoskeleton in case of the arthropoda. Okay, so arthropoda is having the exoskeleton. तो arthropoda का जो exoskeleton है वो बनता है chitin से. अब chitin है क्या? ये कोई प्रोटीन नहीं है. So that is the correction. Chitin प्रोटीन नहीं. Chitin क्या है? It is actually a homopolysaccharide. What is chitin? It is a homopolysaccharide. अब ये बनता किससे है? इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन. किससे बनता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से बनता है, ठीक है ना। अब देखिए नॉर्मली जो नेचर होता है, द नेचर ऑफ द काइटिन इज बेसिकली वेरी सॉफ्ट. इट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड इट इज लेदरी. इट इज सॉफ्ट एंड लेदरी नॉर्मली, ओके. बट व्हाई इट बिकम सो टफ व्हेन इट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा? हमने देखा है कि कॉकरोचेस के केस में या दूसरे इंसेक्ट के केस में अगर हम देखेंगे उनके जो एक्सोस्केलेटन है वो टफ होता है, और वो एक्चुअली मतलब टफ होता है, रफ होता है और थिक होता है. वो सॉफ्ट नहीं होता, लेदरी जैसा नहीं होता, राइट. सो हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज the chitin when it is deposited, when it get deposited to form the exoskeleton, it is getting deposited along with calcium, and that is the reason that the arthropoda, in case of the arthropoda, the exoskeleton is very tough. Okay, it's tough in nature, it's rough in nature, it's thick. Okay, so I hope it is clear. So we'll move on. Now the classification of the arthropoda, it is basically done on the basis of appendages. There is a number of appendages and mode of excretion. That is the main basic criteria we have considered when we classified these arthropodas in different classes. तो क्या क्या हमने कंसिडर किया है? पहला है नंबर ऑफ appendages, मतलब कितने appendages है, legs कितने हैं, मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन्स कितने हैं, और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, ठीक है ना. सो वो जो पर्टिकुलर क्लास के एनिमल्स है, हाउ डू दे एक्सक्रीट एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ appendages they have. So on that basis we have classified the entire phylum into 7 different classes. So the first class we will discuss, or let us see first what are those 7 different classes. So then we'll discuss one by one in detail, right? So first one is your Onciophora. So Onciophora, it is the first class, and its example we will discuss, that is your Peripatus, and commonly we call it as walking worm. Commonly हम इसे क्या कहते हैं? वॉकिंग वर्म कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास क्या है? एरिकनीडा. एरिकनीडा इज द नेक्स्ट क्लास, एंड एग्जांपल इज योर स्पाइडर. ऑल ऑफ यू, आई बिलीव यू हैव सीन द स्पाइडर, इवन यू हैव सीन सम मूवीज अबाउट स्पाइडरमैन एज वेल, आई बिलीव. Okay, so that is also inspired from that particular animal, that is your spider. They belongs to the class Arachnida. Next, the third class, the class number 3 is your crustaceans. Examples, your prawns. Prawns are very famous. They are one of the most demand or most economically important crustaceans, which are, or economically important
of your arthropoda, which is consumed by the people everywhere in the world, and they like it very much, right? So prawn is having economic value as well, right? Now the insecta, that is the fourth class, or the class number 4 is your insecta. Example is your cockroach. I believe every one of you have seen cockroach in your life. So no need to discuss. We'll discuss in detail in the later part when we'll take the each and every class in detail. Okay. The class number 5 is your chilopoda. तो चिलोपोडा क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, सेंटीपीड. हमने पहले भी देखा है, सेंटीपीड का डायग्राम भी देखा है पिछले लेक्चर में. सेंटीपीड, उसके जो फर्स्ट पेयर ऑफ क्लॉज है वो पॉइजन क्लॉज बन जाते हैं, है ना. नेक्स्ट क्लास नंबर 6 जो डिप्लोपोडा, जिसे हम कहते हैं मिलीपेड. मिलीपेड क्या होता है, इसमें कोई पॉइजन क्लॉज नहीं होता, ठीक है ना. हम बात करेंगे, हम डिटेल में देखेंगे इसके बारे में भी आगे जाके. नेक्स्ट मेरिस्टोमाटा. मेरिस्टोमाटा मतलब इसका एग्जांपल क्या है, लिमुलस. लिमुलस को हम बोल सकते हैं कॉमनली किंग क्रैब भी बोलते हैं, और क्या कह सकते हैं उसे, horseshoe crab. And they are also having economic value, and also it is having a very interesting, it is very important if you consider in the term or in the view of or in the point of view, if you take it as an evolutionary point of view, if you consider it as an evolutionary point of view, it is very important. Like we have discussed about a fossil fossil arthropoda, that is tubercle. The same way this is also very important, and it is also considered as living fossils. इसको हम लोग living fossil मानते हैं. ये बहुत मतलब it is living on the planet Earth so long, so that's why it is as old just like a fossil. So that's why we consider it as living fossil. सब कहते हैं living fossil भी, ठीक है. और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है. क्या इंपॉर्टेंस है, इसका जो ब्लड होता है ना, इनके ये जो एनिमल्स है, इनके बॉडी में जो ब्लड होता है, that is and those bloods are basically having a pigment that pigment is basically copper based. So that's why the color of the blood is blue in color. So actually their blood color is blue, and from that blood, the blood is actually very important in the in the pharmaceutical industry, and that is used as a diagnostic kit. So from the blood we are actually extracting one substance that is called lysate. हम ब्लड से लाइसेट निकालते हैं, और वो जो लाइसेट LYSATE लाइसेट. सो ये लाइसेट जो है ये निकलता है आपके, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिमुलस या जो किंग क्रैब या फिर हम जिसे हॉर्सशू क्रैब कहते हैं उसके ब्लड से, एंड विच इज अ वेरी कॉस्टली डायग्नोस्टिक, which is very important in the pharmaceutical industry. It's a very costly diagnostic kit, or the very important diagnostic kits are made up of this lysate. I hope it is clear. So we'll move on and we'll discuss now each phylum in detail. So first one, the first phylum what we're going to discuss, that is your Onciophora. Onciophora, the examples what we're going to take in this case, the important example is your Peripatus, जिसे हम walking worm भी कहते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो आपका walking है, this is K, so be careful, this is K. So now next thing, see, it is very very important because it acts as, or it is used as connecting link. Peripatus बहुत important क्यों है, क्योंकि it is working as a connecting link. सबसे पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि connecting link है क्या. See, connecting link, it is actually we give the term to certain living organism. The organism is living right now. Okay, they are not extinct. They are still now living, and they are sharing the characteristic feature between two groups. मतलब उनके जो characteristic feature है वो दो animal groups के बीच का है. मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि वो दो animal group की जो characteristic feature है वो share करता है, ठीक है ना. अगर ऐसा कोई animal है, हम उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. तो मिसिंग लिंक क्या होगा, आई बिलीव आपने अपने लोअर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, एवोल्यूशन के चैप्टर में आपको पता होगा मिसिंग लिंक क्या होता है. देन लेट मी रिमाइंड यू. देखिए, मिसिंग लिंक मतलब होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा कनेक्टिंग लिंक मतलब ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट नहीं है, या फिर वो अभी फिलहाल वो जिंदा है और ये सर्वाइव करता है, वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा एनिमल. और क्या फीचर होना चाहिए, वो दो एनिमल ग्रुप के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो शेयर करता है. लेकिन मिसिंग लिंक क्या है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, या फिर अभी फिलहाल धरती पे वो नहीं है, और वो प्रेजेंट टाइम में जिंदा नहीं है, ठीक है ना, या सर्वाइव नहीं कर रहा है, लीव नहीं कर रहा है, दे आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम, राइट. एंड दे आर कनेक्टिंग, और एंड देन दे आर शेयरिंग द what is the second feature, and they are sharing the like
features between two groups of animal. Okay, so in that case we are calling those type of organism as missing link. ठीक है, तो अभी हम कनेक्ट लिंक के बारे में बात करेंगे. तो कनेक्ट लिंक मतलब क्या है, दो एनिमल के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो शेयर करता है अगर कोई एनिमल और वो लिविंग है प्रेजेंट डे में, उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक. तो पेरिपेटस क्या है, इट इज आल्सो वर्किंग एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. सो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है दैट इज एक्चुअली शेयर बाय दिस पेरिपेटस. तो पेरिपेटस इसको शेयर करता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में. ठीक है, सो विल डिस्कस वन बाय वन. Now, if we see the body of this peripatus, the body of the peripatus is actually segmented just like the other arthropoda. इसके body में भी segmentation होता है, it is segmented. And the difference क्या है कि इनके जो each and every segment है body में, it is also having appendages, right? But the appendages are unjointed. मतलब क्या है इनके, जैसे अभी arthropoda में हमने क्या पढ़ा था, उसका general characteristic feature क्या है कि appendages are jointed. So that is why the name has come, right? तो नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि एनिमल्स जिसके appendages जो कि जुड़ के बना है, they are jointed appendages, वैसे ऑर्गेनिज्म को एनिमल्स को ही हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं. ठीक है ना. तो लेकिन इसमें आप देखो एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है इसमें, सेगमेंटेशन तो है बॉडी में लेकिन जो आपके appendages है they are unjointed, मतलब उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स जुड़ के नहीं बना है. ओके, इट इज जस्ट लाइक अ पैरापोडिया. हमने डिस्कस किया था नेरिस के केस में, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनिलिडा, जब हम एनिलिडा पढ़ रहे थे फाइलम, तो हमने देखा था वहां पे नेरिस का एग्जांपल देखे थे हमने. तो वहां पे हमने क्या देखा कि नेरिस के जो सेगमेंट्स है, ईच सेगमेंट उससे क्या होता है कि लैटरली आपके पैरेलली अपेंडेजेस मतलब ग्रो कर रहे हैं, और हम जिसे कह सकते हैं इट इज दे आर हैविंग आउटग्रोथ व्हिच इज लीफ लाइक, इट लुक लाइक लीफ, इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, and those are used for locomotion or swimming, precisely for movement and locomotion, and they are considered as parapodia. The same type of parapodia we can see here in this case, in case of parapetus. ठीक है ना. तो इनमें क्या है ना, properly jointed appendages नहीं होते हैं, segmentation होता है लेकिन properly jointed appendages नहीं होते हैं. उसके बदले में क्या होता है, just like they are having parapodia just like the nerisus, right? अब एक्सक्रीशन कैसे होता है, हमें तो ये दो चीज बहुत जरूरी है. हमने क्या पढ़ा था शुरू में, हमने क्या बताया, जस्ट फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस में किया है, नंबर ऑफ अपेंडेजेस और अपेंडेजेस का टाइप क्या है, अपेंडेजेस अनजॉइंटेड है, जॉइंटेड है, कितने अपेंडेजेस हैं वो. दूसरा क्या, एक्सक्रीशन के बारे में हमको जानना है. तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, द एक्सक्रीशन इज टेक्स प्लेस बाय नेफ्रिडिया. सो नेफ्रिडिया क्या होता है, एक्चुअली इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो होता है नेफ्रिडिया. ठीक है. सो नेफ्रिडिया इज एक्चुअली functioning as excretory organ in the case of peripatus. ठीक है. और इनमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में से हीमोसील है तो इनमें भी हीमोसील होता है. रेस्पिरेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन इनके केस में क्या है, इट इज ट्रैकियरी सिस्टम. ट्रैकियरी सिस्टम मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और द नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन दिस केस. ठीक है. तो ये ट्रैकियरी सिस्टम और हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉकरोचेस के बारे में पढ़ेंगे या मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे कॉकरोचेस के बारे में डिटेल में, तब हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. तो आई होप इन दैट केस इट विल बी देयर इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. अब देखो हम यहाँ पे आप देख सकते हो दो कॉलम है, आप यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट द एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. अब देखो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो मैंने बताया था ना, ये पेरिपेटस क्या है, ये एक्चुअली वर्किंग एज अ कनेक्टिंग लिंक. ठीक है ना. तो कनेक्टिंग लिंक कैसे, क्या क्या जो उसके फीचर्स है वो शेयर करता है. देखो एनिलिडा के फीचर्स क्या है, सेगमेंटेड वर्म लाइक बॉडी, वो है जैसे हमने पढ़ा कि पेरिपेटस में सेगमेंटेड होता है बॉडी. ठीक है ना. और क्या होता है एनिलिडा में, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस, वो भी इसमें है. ठीक है ना. और एक्सक्रीशन के लिए क्या यूज करते हैं एनिलिडा, नेफ्रिडिया यूज करते हैं, तो वो भी इसमें कॉमन है. अब आर्थ्रोपोडा के क्या कैरेक्टर्स हमें मिले यहाँ पे, हीमोसिल. देखो आर्थ्रोपोडा में क्या है, हीमोसिल जो है वो आर्थ्रोपोडा में होता है. ठीक है ना. तो वो इसमें भी है. और रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रैकियरी सिस्टम में, जो भी आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो ये आर्थ्रोपोडा के आपके कैरेक्टर्स भी उसके पेरिपेटस के अंदर है, और एनिलिडा के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी इनका एनिलिडा का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो दो एनिमल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर किसी एक एनिमल में है और वो लिविंग है, पेरिपेटस लिविंग है, अभी हमारे प्रेजेंट डे में वो सर्वाइव करता है, वो जी रहा है, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं कनेक्टिंग. ठीक है ना. आई होप इट इज क्लियर. अब देखो उसके अगर बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो लगभग ऐसा होता है. ठीक है ना. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. तो अगर हम आपको डायग्राम भी दिखाएं, सो दिस इज पेरिपेटस. ठीक है ना. तो पेरिपेटस का ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो ये इसका इमेज है.
ठीक है ना, दिस इज द इमेज, दिस वन इज पेरिपेटस, दिस इज पेरिपेटस, ओके। तो बॉडी सेगमेंटेड होता है, लेकिन जो बॉडी इसका सेगमेंटेड होता है, लेकिन जो आपके अपेंडेजेस है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हियर ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट से यहाँ पे एक पेयर करके लैटरली अपेंडेजेस डेवलप हुआ है, जो कि लीफ लाइक है, जो कि बिल्कुल पैरापोडिया जैसा, जैसा कि हमने देखा था नेरिस के केस में, एंटीना भी इनका होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, अनजॉइंटेड अपेंडेजेस है, इसी को हम कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है ना। सो दिस इज अ स्मॉल schematic diagram to make you understand, right? Fine. So the next one is your crustaceans. The next class we need to discuss, that is your crustacean. अब crustaceans में सबसे important examples अगर हम बात करेंगे तो दो तीन example हैं, जैसे prawn, crab, ठीक है। It's not crab, it's crab, huh? So you please ये crab है, okay? It's crab. So it's crab. So be careful, it's crab. Fine. So crab और क्या है, डैफनिया, प्रॉन, ये सब है। तो हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि जो क्रस्टेशियंस की बॉडी का फीचर कैसा है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी बेसिकली कितने तरह से डिवाइड है, बॉडी के कितने पार्ट्स हम देख सकते हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन और सेफेलोथोरैक्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सेफेलोथोरैक्स क्या है, सेफेलोथोरैक्स मतलब क्या है, हेड और थोरैक्स वो डिस्टिंग्विश नहीं है, मतलब या फिर डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ जुड़ गए हैं और जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना है, जिसे हम कहते हैं सेफेलोथोरैक्स। और नेक्स्ट पार्ट क्या है बॉडी में, एब्डोमेन, ठीक है ना। अब देखो सेफेलोथोरैक्स जो है ना, इट इज कवर्ड विद अ बिग पीस ऑफ एक्सोस्केलेटन। जैसे हमने पढ़ा है हर आर्थ्रोपोडा के केस में क्या है, एक्सोस्केलेटन रहता है, जो कि काइटिन से बनता है, काइटिन के डिपोजिशन से बनता है, जस्ट मैंने शुरू में बताया आपको। और वो टफ होता है, रफ होता है ना। वो कैसे होता है, वो बिकॉज ऑफ द कैल्शियम डिपोजिट आल्सो गेट डिपोजिटेड अलोंग विद द काइटिन, इसीलिए वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है ना। सो हमें क्या मिलेगा सेफेलोथोरैक्स में, थोरैक्स के केस में, सेफेलोथोरैक्स के पार्ट में, इस ऑर्गेनिज्म में, मतलब आपके क्रस्टेशियंस में, या फिर प्रॉन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्या होगा, इट इज कवर्ड विद अ वेरी बिग पीस ऑफ एक्सोस्केलेटन। बहुत बड़ा पीस होता है जो कि सेफेलोथोरैक्स का, वो किससे कवर होता है, बड़ा पीस जो होता है, या बड़ा टुकड़ा होता है आपका एक्सोस्केलेटन का, जो कि जिसे हम कहते हैं क्रस्टेशियन के केस में उसे कहते हैं कैरापेस। क्या कहते हैं, सी व्हाट इज कैरापेस। कैरापेस मतलब कुछ नहीं है, जो एक्सोस्केलेटन है आपके क्रस्टेशियन के केस में, जो सेफेलोथोरैक्स को कवर करता है, जो कि काइटिन से बनता है, उसी को हम क्रस्टेशियन के केस में कहते हैं कैरापेस। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। Now in case of crustaceans the number of appendages is 5 pair. See बार-बार हम देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ appendages हैं, appendages का क्या फीचर्स क्या है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सक्रीशन कैसा है, इसके बेसिस में हमें क्लासिफाई किया, तो हम इसे मिस नहीं कर सकते। हर क्लास में हमें ये डिस्कस करना है। तो इनके पास पे क्या होता है, इनके पास 5 वर्किंग लेग्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इनके पास 5, they have 5 pair of appendages and which are actually walking legs, ठीक है ना। तो उनके पास 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, जिससे वो यूज करते हैं लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। नाउ दे हैव गिल्स। इनके पास क्या होता है ना, गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए। सो इट इज डिफरेंट। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, ट्रैकियाई सिस्टम हो रहा था पिछले केस में, पिछले एग्जांपल में पेरिपेटस के केस में। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं गिल्स है। क्यों गिल्स है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो आपकी क्रस्टेशियंस है, ये बेसिकली जो हम देखेंगे, जैसे प्रॉन का एग्जांपल ले लीजिए, दे आर एक्वेटिक इन नेचर, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, पानी में रहते हैं, इसीलिए इनके पास क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। सो द रेस्पिरेटरी और द रेस्पिरेशन इज डन बाय गिल्स, नॉट बाय ट्रैकियल सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होता है, how the excretion is happening in this case or in this organism. See, they have green gland basically, and the excretory organ in case of this crustaceans, that is called green gland. इनके केस में जो excretory organ होता है हम उसे कहते हैं green gland. So और इसे हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, antennary gland, ठीक है। दूसरा नाम क्या है, antennary gland. Fine. So antennary gland और the green gland. So antennary gland हम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसका जो ओपनिंग है, इट इज ओपनिंग जस्ट नियर टू द एंटेना, ठीक है ना। ये ग्रीन ग्लैंड का जो ओपनिंग है, जहां से एक्सक्रीशन करते हैं आपके क्रस्टेशियंस, वो कहां पे ओपन होता है, इट इज नियर टू द एंटेना। सो दैट्स व्हाई उसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम एंटेनरी ग्लैंड भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग,
Next we'll discuss about the example. So first example we'll discuss, that is your prawn, जिसे हम commonly कहते हैं पैलियोमॉन. क्या कहते हैं उसे? पैलियोमॉन. ठीक है. और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हम इसे पीनस इंडिकस. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉमन इंडियन प्रॉन. अब देखो इसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या फिर बॉडी का पैटर्न है, उस या फिर डिवीजन ऑफ द बॉडी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन डिवाइड. बेसिकली सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है. अभी जो सेफेलोथोरैक्स होगा ये कवर कैसे होता है, हमने पहले ही पढ़ा. क्रस्टेशियन की जो सेफेलोथोरैक्स पार्ट है, इट इज कवर्ड विद a big piece of exoskeleton, and उसे हम कहते हैं कैरापेस. ठीक है ना. तो इसके केस में भी क्या होगा, कैरापेस होगा. ठीक है ना. सो जो बड़ा जो आपका सेफेलोथोरैक्स है पार्ट है उसके बॉडी का, इट इज कवर्ड विद अ स्ट्रक्चर दैट इज योर एक्सोस्केलेटन एंड which we call generally as कैरापेस. ठीक है. सो इसके केस में भी वही होगा जो आपके प्रॉन है, इसके केस में होगा. और इसमें जो कैरापेस है ये थोड़ा आगे की तरफ, आगे थोड़ा, मतलब इट्स एक्चुअली लिटिल बिट एक्सटेंडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा आगे बढ़ा हुआ रहता है. कैरापेस थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है. विल सी द डायग्राम जस्ट नाउ, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दिस स्लाइड. सो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोस्ट्रम. क्या कहते हैं उसे? रोस्ट्रम. ठीक है. और क्या होता है उनमें, दे हैव वन पेयर ऑफ आईज, एक पेयर उनके पास दो आईज होते हैं. और क्या होते हैं, दे आल्सो हैव टू पेयर ऑफ एंटेने. तो आंख कितने होते हैं? वन पेयर. और एंटेने कितने होते हैं? दो पेयर. ठीक है. सो विल सी द डायग्राम सो इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सी, सो दिस इज द कैरापेस. कैन यू सी? दिस इज द कैरापेस. ये कैरापेस है. ठीक है. ये कैरापेस है. फाइन. अब देखो ये जो कैरापेस है ये थोड़ा एक्सटेंडेड है. अब देख सकते हैं थोड़ा सा इर्रेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, थोड़ा कैरापेस आगे बढ़ गया है. इसी को कहते हैं रोस्ट्रम. क्या कहते हैं इसे? रोस्ट्रम. आंख कितना है इनके पास? एक पेयर है. तो हम, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है, तो हमें एक साइड से बस एक आंख दिख रहा है, उस साइड में आपके दूसरे आंख भी है. ठीक है. और एंटेना कितना है? दो पेयर. सो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है. सो दो पेयर, टू पेयर्स ऑफ एंटेना आर आल्सो देयर. आईज हाउ मेनी पेयर? ओनली वन पेयर, मतलब दो आंखें. ठीक है. नाउ दे हैव 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स. सो आप देख सकते हो ये इनके जो वॉकिंग लेग्स है, ये पहला वाला आप देख सकते हो, मैंने ड्रॉ किया आपके लिए. So you can see these are made up of different parts are jointed and forming the leg, right? So इनके पास जो है जो legs होते हैं वो jointed होते हैं, just like the arthropoda characteristic feature. और बाकी जो आपके 4 legs हैं, मैंने आपको यहाँ पे lines के थ्रू दिखाया है, ये भी jointed होते हैं, but for the convenience of drawing I have shown here in this way. Okay, so they have 5 pairs of walking legs. ठीक है ना. अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सेफेलोथोरैक्स के बाद जो इनका जो नेक्स्ट पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट जो होता है, उसमें बेसिकली 6 पार्ट होते हैं, 6 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है ना. इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सेगमेंट्स. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अब ये हर सेगमेंट से आप देखोगे ध्यान से तो वी कैन सी दैट अगेन सम स्ट्रक्चर्स आर अलाइजिंग. ठीक है. सो हर सेगमेंट से आपको एक एक स्ट्रक्चर मतलब आपको दिखेगा जो कि बन रहा है, राइट. सो ईच एंड एवरी सेगमेंट इट इज फॉर्मिंग अ न्यू स्ट्रक्चर. नाउ द स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से डिफरेंट वे, द एब्डोमेन इज हैविंग 6 सेगमेंट्स. ठीक है. एंड इन द एब्डोमिनल रीजन फ्रॉम ईच सेगमेंट अ पेयर्ड स्ट्रक्चर अराइजेस. अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, एक एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है. तो एक पेयर मतलब दो दो करके ये हर एक सेगमेंट से बनते हैं, हर एक सेगमेंट से रहता है. ठीक है. सो पेयर्ड स्ट्रक्चर. And these structure are going to help in which part? They are going to help in swimming. आप यहाँ देख सकते हो, they are flat in shape. Flat होते हैं. They are flat in shape. देख सकते हैं आप. They all are flat in shape. So because they are flat in shape, so that's why they are helping in swimming. Because the prawns are aquatic, so they need some like locomotory organs, so they need some appendages which actually help them for swimming as well. So these are these structures which are going to help them for swimming because they are flat in structure. Now these structure have flat parts I have discussed, and these pair structure is present from segment number 1 to segment number 5. कहाँ कितने segments पे होते हैं? सिर्फ 5 segment. अब ध्यान से देखिए, पहले वाले में है, सेकंड वाले, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में. सिक्स्थ में नहीं है. सिक्स्थ में नहीं है. क्यों? सिक्स्थ में क्या हुआ? See, the sixth abdominal segment also have the structure, but these structures are extended backwards. ठीक है ना.
जो 6 सेगमेंट है उसमें भी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या हुआ, मॉडिफाई हो गया और वो बैकवर्ड डायरेक्टेड हो गया, ठीक है ना, वो एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा, जैसे कि रोस्टम देख रहे हो आप, देखा था हमने कि कैरापेस से एक्सटेंड होकर रोस्टम बन गया, तो बिल्कुल वैसे ही ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वो 6 पार्ट में है, लेकिन वो एक्सटेंड हो गए और किस तरफ चले गए, इट एक्चुअली वेंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आपका एक्सटेंड हो चुके हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं उसे, वो कहते हैं यूरोपॉड्स, ठीक है। ये वाला आप देखो, ये दिस वन एंड दिस वन, इसे कहते हैं यूरोपॉड्स। और ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर हर सेगमेंट से जो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं या रहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लियोपॉड्स, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जो 6 सेगमेंट से निकलते हैं एक्सटेंड होके मॉडिफाई होके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होके, उसे कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं यूरोपॉड्स। सो प्लियोपॉड्स एंड यूरोपॉड्स, ठीक है। नाउ द पॉइंटेड, अब देखो ये जो यूरोपॉड्स है, इसके बीच में से आप देखना एक पॉइंटेड टेल लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो अराइजिंग, ठीक है, between the uropods. So there is a pointed tail like structure can be seen between the uropods and that is called tailson. क्या कहते हैं हम इसे, tailson कहते हैं, ठीक है। So this is the basic structures in case of, or the basic things we need to know about in case of prawn. So this is the basic general characteristic picture of body structure, body features of the prawn that we need to know, right? So all the points are given below, the same thing what I have discussed. So you can draw the diagram and you can write down you can pause and write down the points accordingly, right? So we'll move on to the next part or next. So here also we can see the same points what I have just discussed with you. So here one thing is missing, you need to write have. This is have. Fine. The 6th part or 6th abdominal segment also have the structure, but these structures are extended backward. जैसे मैंने बताया था आपको, structures तो हैं लेकिन वो extend हो गए और backwardly directed हो गए between, और इनके बीच में क्या होता है ना, एक pointed tail like structure होता है जिसे हम कहते हैं tailson, और ये जो structure जो modify होकर backwardly directed हो गए उसे बोलते हैं यूरोपॉड्स। और जो हर सेगमेंट नंबर 1 से लेके सेगमेंट नंबर 5 तक जो है पेयर स्ट्रक्चर फ्लैट लाइन, उसे हम कहते हैं प्लियोपॉड्स, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो यू कैन मेक ए पॉज, यू कैन जस्ट पॉज इट एंड यू कैन टेक ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन। नाउ one which present in the 5th abdominal segment help in the swimming and known as pleopod, हमने डिस्कस कर लिया है, the same point. Now we'll talk about the sexes. See, sexes are basically separate, development is direct. मतलब sexes क्या होता है इनके केस में, प्रॉन के केस में या फिर जो क्रस्टेशियंस के केस में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मेल होता है अलग, फीमेल अलग होता है, मतलब sexes are separate. Sexes are not present in the same organism, मतलब क्या है, ये hermaphrodite नहीं है, ठीक है ना, इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है, ठीक है, अलग अलग डिवीजन होता है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं है। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, जो हमें जानना चाहिए, वो है इनका ऑटोनॉमी। दे शो ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी है क्या? अब ऑटोनॉमी ऐसा होता है, आपने पहले ही पढ़ा होगा या शायद आपको पता होगा कि लिजर्ड, व्हेनेवर द लिजर्ड इज एक्चुअली लाइक chased by the predator, for the safeguard of themselves, what they do in defense, they actually they can cut off or they can just sacrifice their tail part. The same way these prawns, they can also cut off the body parts for safeguarding or in case of defense, okay, from the predator. So predator से बचने के लिए what they can do, they can cut off the body parts, right? अपने बॉडी पार्ट्स को वो ये कर सकते हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स को निकाल सकते हैं, अपने बॉडी से छोड़ सकते हैं, राइट, इन सेल्फ डिफेंस, ठीक है। नाउ अब वो सेल्फ डिफेंस में कौन सा पार्ट एक्चुअली कट ऑफ, मतलब बॉडी से डिटैच कर देते हैं, दैट इज द प्लियोपॉड, ठीक है। कौन सा पार्ट वो डिटैच करते हैं, प्लियोपॉड, जो पार्ट जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, वन फर्स्ट सेगमेंट से 5th सेगमेंट में है, वो वाले फ्लैट लाइक पेयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसको वो निकाल देते हैं, उसको वो फेंक देते हैं, उसको या छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका प्रेडेटर है, एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, व्हेन दिस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर इज रिमूव्ड और इट इज कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी, it is showing a
wiggle or it is wiggle for some time. Wiggle मतलब क्या, ये थोड़ा सा हिलता रहता है, इससे क्या होगा, प्रेडेटर क्या है, थोड़ा मिसगाइड हो जाता है, तो उसकी तरफ उसकी नजर चल मतलब उसका नजर चला जाता है, तो इट इज टेकिंग दैट एडवांटेज एंड दे एस्केप। ठीक है, इसका एडवांटेज लेके ये जो प्रॉन है आपका, जो क्रस्टेशियन हम डिस्कस कर रहे हैं पैलियोमॉन, वो भाग जाता है उससे बचने के लिए। फॉर सेल्फ डिफेंस दे आर यूजिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स, दैट इज फीचर दैट इज ऑटोनॉमी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दूसरा एग्जांपल क्या हम डिस्कस करेंगे, क्रैब। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट क्रैब बेसिकली, राइट। अब तो क्रैब में जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो कैरापेस होता है इनका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मतलब जो एक्सोस्केलेटन पार्ट होता है, ये मैक्सिमम पार्ट बॉडी का वो कवर कर लेता है। आप ध्यान से देखोगे तो इफ यू सी इट केयरफुली, तो अब देखो ये जो पूरा पार्ट है क्रैब का, ये आपका कैरापेस है। दिस इज कंप्लीटली, इट्स अ टफ structure made up of chitin, it is exoskeleton। और आप यहाँ पे देख सकते हो, there are some lines I have drawn, so this small part is your abdominal, so this is your carapace and this small part, abdomen part बहुत छोटा हो जाता है, reduce हो गया है, the abdomen part is actually reduced and the carapace is actually covering, it is having the maximum area, it covers the maximum area of the body। ठीक है, और इनमें क्या होता है, एंटीना भी होता है, आप देख सकते हो, और इनमें आईज होता है जो कि कंपाउंड आई है। Let us discuss some other important thing जो क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कि लेग्स कितने होते हैं। ठीक है ना, सो लेग्स या फिर जो वॉकिंग लेग्स है, दे आर हैविंग 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। कैन यू सी हियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो इनके पास 4th पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 8 लेग्स होते हैं। अब इसमें पहला वाला जो उनका लेग है, फर्स्ट वन, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं कि इसके जो एंटीरियर पार्ट है, इट इज गेटिंग मॉडिफाइड एंड इट इज एक्चुअली हेल्पिंग देम टू होल्ड सर्टेन थिंग्स, कैप्चर द फूड, इट इज आल्सो हेल्प देम टू अटैक, ओके, आल्सो हेल्प देम टू कैप्चर द फूड, आल्सो इट हेल्प देम इन डिफेंस, सेल्फ डिफेंस इज आल्सो हेल्पफुल। तो ये जो पॉइंटेड जो फर्स्ट पेयर, मतलब इधर से भी, मतलब फर्स्ट पेयर मतलब लेफ्ट साइड से भी जो लेग है आपका, the first pair of leg it's getting modified or it is having this pointed structure and that is called chillet legs। जो फर्स्ट वाला जो आपके पेयर, जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स है उसे हम कहते हैं chillet legs। ठीक है ना। so let us, you can pause and draw the diagram। देखो हमने अभी जस्ट जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि एब्डोमिनल पार्ट या एब्डोमिनल रीजन जो होता है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड, हमने देखा यहाँ पे बहुत ही रिड्यूस हो जाता है ना। और क्या है, there are having 4 pairs of legs। फर्स्ट पेयर क्या है, फर्स्ट पेयर इट इज कॉल्ड द चिलेट लेग्स। ठीक है, और जो लास्ट सेगमेंट है इनका बॉडी का, ठीक है ना, जो लास्ट सेगमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, या फिर हम जो आप उनके जो फर्स्ट वाले पेयर्स ऑफ लेग्स की बात करते हैं, जिसको चिलेट लेग्स कहते हैं। सो दे मॉडिफाई एंड दे हैव अ क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म अ क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर। वापस चलते हैं, देखते हैं, देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट लेयर का, दैट इज क्लॉ लाइक, है ना। आई विल शो यू, जस्ट वेट, या सो इट इज हैविंग अ क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बिल्कुल जैसे हमने सेंटीपीड के केस में देखा था, उसके जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स हैं वो भी मॉडिफाई होकर क्लॉ बन जाते हैं, पॉइजनस क्लॉज बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन ये पॉइजनस क्लॉ नहीं है। ये क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर किस काम में काम आता है, इसको दे आर हेल्पिंग इन सेल्फ डिफेंस एंड आल्सो इट इज हेल्पिंग टू कैप्चर some food as well, right? Now they have a pair of compound eyes and antenna as well। इनके पास compound eye और antenna भी होता है, जब हमने भी डिस्कस कर लिया। Next example we're going to discuss, that is your Daphnia। ठीक है, Daphnia is actually having a very high economic value। Daphnia is having a very high economic value। Why? Because it is used for, और इट इज यूज्ड एज एक्चुअली पोल्यूशन इंडिकेटर। अब देखो पोल्यूशन इंडिकेटर क्या है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना पड़ेगा। पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब हम ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसके प्रेजेंस से या उसके बॉडी के या उसके कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर से हम ये पता कर सकते हैं कि उस एनवायरनमेंट में जहां पे ये एनिमल है, वहां पे पोल्यूशन का कंसंट्रेशन या पोल्यूशन का लेवल क्या है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लाइकेन्स। लाइकेन क्या होता है, इट्स अ कॉलोनी वेयर द बैक्टीरिया एंड फंगाई दे लिव टुगेदर। अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपने शायद सबने देखा होगा कि whenever you visit certain area or whenever you see the tree,
Okay, big tree. So the tree trunk, on the bark of the tree, sometimes you can see some white patches. आपको white patches दिखेंगे, ठीक है? तो जो white patches है ना, वो थोड़ा सा, मतलब white तो हम बोलते हैं, लेकिन वो little bit होता क्या है, little bit bluish होता है, हल्का bluish होता है, ठीक है? तो आप देखना पेड़ के जो आपके bark एरिया है, उसमें मतलब आपके पेड़ों के चारों तरफ या पेड़ के बॉडी के ऊपर आपको दिखेगा ये व्हाइट पैचेस, वो एक्चुअली लाइकेंस है। तो जहां पे जिस एनवायरमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे ये पैचेस कम मिलेंगे आपको, और जहां पे पोल्यूशन कम है वहां पे ये पैचेस प्लांट के बॉडी के ऊपर ज्यादा मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पोल्यूशन इंडिकेटर हो गया, इसी को हम कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। सो वैसे ही डैफनिया भी पोल्यूशन आपका पोल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, दो क्लास हम थोड़ा कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो लगभग सेम ही है जो आपके आर्थ्रोपोडा के हैं, वही सेम फीचर्स होते हैं टिपिकल आर्थ्रोपोडा के। तो यहाँ पे दो जो क्लास हम डिस्कस करने वाले, पहला है चिलोपोडा, दूसरा है डिप्लोपोडा, ठीक है। तो चिलोपोडा का एग्जांपल है आपका सेंटीपीड और डिप्लोपोडा का एग्जांपल है मिलीपीड। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा आपको क्रैब का एक और प्रॉन का एक इमेज दिखाऊंगा। जैसे ये प्रॉन है, आप देखिए, जैसे हमने बात किया था ना प्रॉन के बारे में। सो लेट मी जस्ट मैग्नीफाई दिस डायग्राम फॉर यू। तो थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं इसको और देखते हैं, इनको थोड़ा हटा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, दिस इज द कैरापेस एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। हमने इसको, ये कैरापेस, और ये देखो ऊपर आप दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा इरेगुलर स्ट्रक्चर आगे की तरफ गया है, इसी को बोलते हैं रोस्ट्रम, और ये कैरापेस है। देखो आप, इनके पास दो पेयर ऑफ एंटेने है ना, और एक पेयर ऑफ आई है, और देखो यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो इनके पास 5 पेयर्स ऑफ लेग्स है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है प्लियोपॉड्स। और लास्ट में जो सेगमेंट्स 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 सेगमेंट जो है, 6 वाला सेगमेंट, उसमें क्या होगा, आप देखो ये आपको यूरोपॉड्स दिख रहे होंगे, और ये इसके बीच में जो आपका ये है टेल्स है, ठीक है ना। सो दैट इज द this is the diagram to show you for better understanding, and if you want you can also see something, some images if you want by yourself as well, ठीक है। अच्छा, थोड़ा क्रैब के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये क्रैब का है डायग्राम, ठीक है ना। देखो क्रैब के मैंने आपको पढ़ाया था, जो फर्स्ट वाला जो पेयर है, फर्स्ट वाला जो आपके द पेयर ऑफ लेग्स, द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, इट इज मॉडिफाइड इनटू क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, है ना। देखो क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं चिलेट लेग्स, है ना, इसे कहते हैं चिलेट लेग्स। और ये कैरापेस है, देखो एंटीना भी है, आपके आईज भी है, और बाकी के आपके ये उनके लेग्स भी है, ठीक है। दिस इज एब्डोमेन पार्ट, और कॉमन नेम से कहते हैं कैंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ वी नीड टू डिस्कस, या Palaeomen is done, so we'll discuss the Chilopoda and Diplopoda. Fine. तो Chilopoda एग्जांपल है सेंटीपीड एंड डिप्लोपोडा का एग्जांपल है मिलीपीड। अब देखो दिस बोथ आर वर्म लाइक आर्थ्रोपोड्स, ये दोनों ही वर्म लाइक आर्थ्रोपोड्स हैं, एंड दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, दोनों में सेगमेंटेड बॉडी होता है जैसे कि आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड बट इसके अलावा इनके ये बेसिक फीचर्स तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी इनमें कुछ डिफरेंस है। सो दे हैव सम डिस्टिंक्टिव और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। पहला हम बात करेंगे सेंटीपीड के बारे में। सेंटीपीड इज अ कार्निवोरस, क्या होता है वो, कार्निवोरस होता है सेंटीपीड्स क्या होता है, इट्स अ कार्निवोरस, एंड दे आर नॉर्मली नॉक्टर्नल, वो रात को ही निकलते हैं, ठीक है ना। और दे आर वेरी फास्ट मूविंग, एंड द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड द लॉन्ग सेगमेंटेड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड योर ट्रंक। हेड और ट्रंक में बॉडी डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो दिस इज द हेड पार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर ट्रंक, एंड व्हिच इज एक्चुअली सेगमेंटेड, आप देख सकते हो इट इज सेगमेंटेड, और हर सेगमेंट से आपको एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स मिलेंगे, राइट, जो कि जॉइंटेड है। तो आई हैव ड्रॉन ओनली वन द फर्स्ट पेयर विद जॉइंटेड अपीयरेंस, एंड द रेस्ट आई हैव ड्रॉन विद लाइन फॉर कन्वीनियंस, राइट। नाउ द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स आप देखो यहाँ पे, जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स इट मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज, ठीक है, इनमें एंटीना भी होता है, आईज भी होता है। तो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स क्या होता है, ये मॉडिफाई होकर पॉइजन क्लॉज बन जाता है, ठीक है ना, इनके केस में, मिलीपीड्स के केस में।
So that is these are the these are the distinguishing features or distinct features between the millipede and centipede. ठीक है, अब सेंटीपेड में बात करेंगे, इसके पहले मिलीपेड्स में बात करेंगे, इसके पहले सेंटीपेड का एक इमेज हम देख लेते हैं, हाउ द सेंटीपेड्स आर एक्चुअली लुकिंग। सो यहाँ देखिए, दिस इज सेंटीपेड्स, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये है सेंटीपेड्स। इसके आप देखिए ध्यान से, ये हेड पार्ट है, बाकी के बॉडी का जो पार्ट है वो सेगमेंटेड है, और इनके बॉडी के फर्स्ट वाला जो पेयर है, जो लेग्स है, दैट इज मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज, ठीक है, एंटीना भी है, आइस भी है, ठीक है, और ये आगे हम पढ़ेंगे, दिस इज योर मिलीपेड। सो दिस इज योर सेंटीपेड एंड दिस इज योर मिलीपेड। सो हम पढ़ेंगे अभी आगे, फाइन। सो नाउ नेक्स्ट इज योर मिलीपेड। मिलीपेड्स में क्या होता है? द मिलीपेड्स आर हर्बीवोरस। पहले हमने देखा था सेंटीपेड्स क्या है, वो कार्निवोरस है। मिलीपेड्स क्या है? दे आर हर्बीवोरस एंड दे शो दे आर स्लो मूविंग। उसमें क्या देखा था? वो फास्ट मूविंग था। ये क्या है? स्लो मूविंग है। और बॉडी क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड लॉन्ग ट्रंक। तो बॉडी में क्या है? हेड पार्ट भी है, थोरैक्स पार्ट भी है और ट्रंक भी है। लेकिन उसके केस में क्या, पिछले केस में हमने क्या देखा? सेंटीपेड के केस में क्या था? हेड है और ट्रंक है, बस, ठीक है। ट्रंक मतलब क्या होता है? ट्रंक इज एक्चुअली एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। अब इनमें क्या है? दे आर आल्सो हैविंग कंपाउंड आई एंड एंटीना। कंपाउंड आई इनमें होता है और एंटीना भी होता है, ठीक है। तो अगर आप पहला पार्ट देखोगे, सो दिस इज योर हेड पार्ट एंड देन दिस इज दिस सेगमेंट, दिस पार्ट, दिस थ्री पार्ट्स इन दिस फर्स्ट थ्री पेयर्स ऑफ द लेग्स which is arising from the three segments, that is considered as thorax, ठीक है। उसे हम कहते हैं thorax part, ठीक है। अब जो thorax segment है, it is basically it have one pair of legs। thorax जो होता है उसमें basically क्या होता है? It's having basically one pair of legs, ठीक है। और abdominal part क्या होता है? It is made up of 40 to 50 segments। कितने segments होते हैं? 40 से 50 segments होते हैं। Each segment have two pairs of legs, ठीक है। तो पहला क्या है? थोरैक्स के जो फर्स्ट थोरैक्स के केस में क्या है? उसमें सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ लेग्स है। वापस चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखो आप, एक एक पेयर के लेग्स हैं, बस सिंगल पेयर है। इसके बाद के जो सेगमेंट्स हो कितने हो सकते हैं? 40 से 50 सेगमेंट्स हो सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई मार्क्ड हियर, दे आर हैविंग टू पेयर्स। इसमें भी टू पेयर है सॉरी, इसमें भी टू पेयर है, इसमें भी ऐसे 40 से 50 जो सेगमेंट्स है, सब में टू पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, एक्सेप्ट द थोरैक्स रीजन। थोरैक्स पे क्या होता है? सिंगल पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। एंड इसी के लिए ना हमें ऐसा लगता है कि उनके मिलियंस ऑफ पेयर्स है, बहुत सारे पेयर हमें लगता है उनका है। इसी कारण से इट अपीयर्स दैट दे हैव मिलियंस ऑफ लेग्स, ओके। सो द सेम पॉइंट इज रिपीटेड हियर। और जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं? जॉइंटेड होते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इनमें भी कॉमन है, इनमें भी जो लेग्स होते हैं, दिस आर एक्चुअली जॉइंटेड स्ट्रक्चर। And because of the body have many legs, and as a result it appears that they have millions of legs, and that is why the name is millipede। इसीलिए हम इसका नाम क्या रख दिए हैं? millipede, ठीक है। अच्छा, अब देखो मिलीपेड जो है ये, और क्या इसका काफी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखा है इनके सेंटीपेड और मिलीपेड के बीच में। अच्छा, डिफेंस के लिए जो सेंटीपेड ने क्या किया था? फर्स्ट पेयर ऑफ उनके पास जो लेग्स है, इज मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज फॉर डिफेंस, फॉर सेल्फ डिफेंस। बट इनके केस में क्या है? इनके केस में कोई पॉइजन क्लॉज नहीं है। ये क्या करते हैं ना, दे आर एक्चुअली secreting a special type of substance or a fouling smell, ओके। ये करते हैं ना, ये एक बदबूदार एक अरोमा, मतलब अरोमा नहीं, बदबूदार एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिससे क्या होगा? जो भी प्रेडेटर है, बिकॉज इट्स अ स्टिंग एंड इट इज सीक्रेटेड बाय अ ग्लैंड दैट इज कॉल्ड स्टिंग ग्लैंड, ठीक है। जहां से सीक्रेट होता है उसे हम कहते हैं स्टिंग ग्लैंड। सो दिस इज द स्टिंग ग्लैंड। काम क्या है इसका? ये फाउलिंग स्मेल रिलीज करता है, इससे क्या जो भी प्रेडेटर है वो उससे दूर भाग जाएगा। ये उसका मोटो होता है, ठीक है। और क्या है? और दूसरा क्या तरीका है? ये अपने डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। दूसरा तरीका है, इट कैन कॉइल्ड अराउंड हिज ओन बॉडी। तो आपने कभी अगर मिलीपेड को देखा होगा, अगर आप उसे टच करोगे तो वो कॉइल बना लेता है अपने बॉडी का, और वो क्या होता है? बहुत टफ होता है, ठीक है। और जब तक उसे लगता है कि अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ये प्रेडेटर या मतलब खतरा है, तब तक वो कॉइल के शेप में ही रहता है, ठीक है। अब देखो कॉमन थिंग्स क्या है इनके बीच में? द कॉमन थिंग्स बिटवीन दीस टू एनिमल्स आर, दैट इज द चिलोपोडा एंड द डिप्लोपोडा, इज दैट दे हैव द ट्रैकियरी सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। दोनों के बीच में कॉमन क्या है? दोनों ही जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किससे करते हैं? कौन सा सिस्टम होता है इनमें? दोनों में ही होता है ट्रैकियरी सिस्टम, ठीक है ना। सो दैट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, है ना। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, जैसे आपने आगे पीछे पढ़ा है
अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं जैसे कि क्रस्टेशियंस हैं, उनमें क्या होता है, गिल्स भी होता है, ठीक है ना। लेकिन इनमें क्या है, दोनों सेंटीपेड्स और मिलिपेड्स टेरेस्ट्रियल है, और दोनों के केस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रैकियरी जो नेटवर्क है उसके द्वारा, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम इमेज दिखाऊंगा आपके मिलीपेड्स का। देखिए ये होता है एक्चुअली सिचुएशन, जब हम इसे टच करते हैं ना तो ये कॉइल बनाना स्टार्ट कर दिया है और फाइनली ऐसा कॉइल बन जाता है, कैन यू सी। सो फाइनली ऐसा कॉइल कर देते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। और उनके पैर आप देखिए, देख के लगता है कि कितने सारे पैर है, मिलियंस ऑफ पैर्स है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं मिलीपेड्स। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है इनमें एक्सक्रीशन के लिए, और क्या यूज करते हैं, दे आर आल्सो यूजिंग योर मैल्पीजियन टिब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन एज वेल। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास और क्या हो सकता है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है। सो द एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन पर्पस वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए उनके पास क्या होता है, ट्रैकेरी सिस्टम, और एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है, मैल्पीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। So I hope it is clear to all of you. So I'll stop here, and in the next video lecture we'll discuss further about in the arthropoda, and we'll discuss the other classes in detail, like insecta. We'll discuss in detail in the next lecture. Till then, take care, be safe, stay at home.